আমি এটা সবসময় বিশ্বাস করি যে 95% ইজ মাই হার্ড ওয়ার্ক, বাট 5% ডিপেন্ডস অন দ্য ডে অফ দ্য এক্সাম। নমস্কার, 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে এবং পাঠকদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। খুব ভালো থাকুন, স্টে টিউনড, অল দ্য বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचाরের সমস্ত দর্শককে জানাবো অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शक के जाना आंतरिक शुभेच्छा। दिस इज मधुर भंडारकर एंड आप देख रहे हो 24/7 ताजा समाचार। बेस्ट विशेस। दोस्तों, आप सभी जानते हैं एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए नीट एग्जाम क्लियर करना कितना जरूरी हो जाता है, और अगर हम ऐसे नीट विद्यार्थियों से आपको मिलाएं तो कैसा लगेगा कि हाँ, ये परीक्षा में न सिर्फ उत्तीर्ण हुए हैं बल्कि टॉप किया है इन्होंने। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं आज और गोदीप दत्तिया। जी हाँ, इन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की। আমরা প্রথমে জিজ্ঞেস করবো যে কি করে এই সাকসেসটা পাওয়া যায়, কি বলবে তুমি? হ্যাঁ, এই সাকসেসটা পাওয়ার জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের আকাশ ইনস্টিটিউটের যে প্রসেসটা, ওনাদের যে প্ল্যানার, ওনাদের যে প্ল্যানারটাকে ফলো করা, সমস্ত টেস্ট সিরিজ প্ল্যানার, ক্লাস প্ল্যানার, মাঝখানে যে ক্লাসের মাঝে যে টেস্ট হয় সেগুলোর প্ল্যানার, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যে পুরোপুরি ট্রাস্ট করতে হবে প্রসেসটাকে এবং স্যারদের কথা শুনতে হবে। আর এটা কি মনে করো যে মানে বিদ্যার দেবী আমরা যাকে বলি সরস্বতী, নির্ভর করা দরকার তার উপরে, নাকি তোমার ট্যালেন্টেই কাজে লাগে সবসময়, কি বলবে? আমি এটা সবসময় বিশ্বাস করি যে 95% ইজ মাই হার্ড ওয়ার্ক, বাট 5% ডিপেন্ডস অন দ্য ডে অফ দ্য এক্সাম। আমি এক্সামের দিন অনেকটা নির্ভর করে, কারণ সেই স্ট্রেস, একটা এক্সাম হলে বসে স্ট্রেস যে আমি এত বছর ধরে এটার জন্য খাটছি এবং আজকের পরীক্ষাটা যদি আমার কাছে খারাপ হয়ে যায় আমার কি হবে, এই ভাবনাটা কিন্তু নেওয়া যাবে না। একদম কুল মাইন্ডে যেভাবে আমরা মক টেস্ট দিয়ে এখানে সেন্টারে বসে ঠিক সেভাবেই পরীক্ষা দিতে হবে, and that will be very easy, and you have to make certain decisions on the spot because there will be 5 to 6 questions that have not been asked anywhere before. So these 5 to 6 questions are very crucial for the determination of the rank. So at this point you have to think very conceptually, like everything will not be from NCERT at this moment, like directly from NCERT. So there were certain questions from biotechnology and botany also that were out of the box a bit. So you have to think conceptually for these questions, and what NEET does is it changes its pattern every year. So you have to be prepared to face challenges. If you think that, oh no, there are new type of questions, I have never done this, so what can I do? There is nothing to think about like this, because we can easily figure out, then the concept behind this, the knowledge behind this is exactly same. The pattern might be different, so you have to keep your mind cool for in the day of the exam, and also there is very important. That's very important, and that you can say the luck purpose on this. प्रशांत जी हमारे साथ बीच मौजूद है इस वक्त, जो इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं। प्रशांत जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आपके विद्यार्थी ने टॉप किया है? जी, अर्गोदीप ने डेफिनेटली रैंक 1 किया है ऑल इंडिया में, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। और ये एक्चुअली शुरू से ही फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ही वाज अ वेरी मेरिटोरियस स्टूडेंट एंड स्टूडियस। एक चीज़ है कि बच्चे बहुत सारे टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वही बच्चे अल्टीमेटली टॉप करते हैं जो टीचर्स के गाइडेंस में रहते हैं। और इसको जैसे हम लोगों ने गाइड किया, जैसे हम लोगों ने इसको मेंटर किया, ये मतलब उसको बिल्कुल ब्लाइंडली उसको फॉलो किया। तो कोई डिविएशन है कि सर ये पढ़ना जरूरी है या नहीं पढ़े या क्या करें, तो ब्लाइंडली इसने इसको फॉलो किया। एंड नॉट ओनली ही हैज गॉट अ रैंक 1 इन नीट एग्जाम, but he also scored a 99.3 percentile in JEE Main, and he also did very well in JEE Advanced, and he also getting a very good rank in JEE Advanced also. And from the very 9th only he has started the preparation of the NEET. ऐसा नहीं कि 2 साल, बट 4 ईयर इसने प्रिपरेशन किया है नीट के लिए। और अल्टीमेटली ये कहना चाहेंगे कि कोई भी बच्चे हैं तो प्रिपेयर करना, कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, इसलिए प्रॉपर एक सिस्टम चाहिए। तो सिस्टम के लिए थोड़ा सा आपको कोचिंग का हेल्प लगेगा, क्योंकि आप अच्छा कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि एक सिस्टम जो चाहिए वो करना है। अब जैसे कि हम लोगों ने इसको मेंटरिंग किया, गाइड किया कि बिफोर द नीट एग्जामिनेशन
आपको जो है मतलब बिल्कुल नीट के शेड्यूल में रहना है, क्योंकि नीट का एग्जामिनेशन का टाइम होता है 2 बजे और बच्चे को वहाँ पे 11 बजे करीब पहुंचना होता है। तो हम लोगों ने इसको ये समझाया कि तुमको जो है मतलब फॉर 1 मंथ आपको जो है दिन में कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, सिर्फ आपको वाटर बॉटल आपको रखना है, वही पानी पीना है। प्लस है ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि दो इट इज एग्जाम ऑफ 3 hours 20 minutes, बट एक्चुअली में यू गेट अ आवर ऑफ 3 hours। तो 20 मिनट आपका वेस्ट होता है वहाँ पे, बिकॉज विजिटर्स होते हैं, साइन कराते हैं, ये कराते हैं, लॉट्स ऑफ ह्यूमिडिटी एंड समर और ये सब बहुत कुछ है। ये सब हम लोगों ने इसको प्रिपेयर कराया और ये उसको प्रिपेयर किया। तो ये सब करने से अल्टीमेटली एक गोल अचीव हुआ। और बाकी 5% 10% तो डे का भी वेटेज होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 720 स्कोर कर सकते थे, लेकिन समहाउ बच्चे हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है। लेकिन ये है कि ये प्रेशर ले पाता था और ये अल्टीमेटली कूल एंड काम रहा और प्रेशर इसने लिया और ये इसने अच्छे से किया। इस वक्त हमारे बीच एक और नीट टॉपर जिनिया भट्टाचार्य मौजूद है। जिनिया, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है ये बताइए। सर बहुत अच्छा लग रहा है, रिलीफ लग रहा है कि मेरा गोल अचीव हो गया। इस सक्सेस को पाने के लिए आपने कड़ी से कड़ी मेहनत करी होगी, कुछ बताएं। मैंने क्लास 10 का अपना बोर्ड दिया था, एसएससी बोर्ड, और उसके बाद में जब क्लास 11 में आई तो मैंने अपना नीट प्रेपरेशन शुरू किया था। नीट एक OMR एग्जाम है और उसके लिए बहुत ही डिफरेंट टाइप का प्रेपरेशन लगता है कंपेयर टू द क्लास 10 बोर्ड्स। तो इसमें मुझे आकाश इंस्टीट्यूट से बहुत हेल्प मिला, क्योंकि हम लोग के जो रेगुलरली ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस होते थे, वहीं पे हम लोग के टीचर्स NCERT के बहुत सारे हिडन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग को बता देते थे, तो वो हम लोग का क्लियर हो जाता था। एंड क्लास के विद इन हम लोग का NCERT लर्निंग ऑलमोस्ट हो जाता था। तो घर पे आके मैं अपने टीचर्स का होमवर्क खत्म करती थी और मॉड्यूल को पढ़ लेती थी, तो उसमें मेरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाता था। फिर हम लोग के फोर्टनाइटली टेस्ट होते थे, तो उसमें जो जो गलती होती थी वो मैं एनालाइज कर लेती थी। क्लास 12 में आके हम लोग के बहुत सारे फुल सिलेबस टेस्ट हुए थे एंड 720 मार्क्स पे बहुत सारे टेस्ट हुए थे। तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई थी, क्योंकि मेरा नर्वसनेस दूर हो गया और टेस्ट के टाइम में कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है और टेस्ट को कैसे खत्म करना है वो भी मेरा बहुत बार प्रैक्टिस हो गया। फिर लास्ट 3 मंथ्स में मेरा जब फुल सिलेबस खत्म हो गया था, मैंने पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया। एंड हाँ, लास्ट 3 मंथ्स में बस स्ट्रेस नहीं करना है एंड काम डाउन रहना है, फिर रिजल्ट तो अपने आप ही आ जाएगा हार्ड वर्क करने से। आगे चलकर आपका क्या प्लान है? आगे चल के मुझे अपना अभी MBBS करना है और कार्डियक सर्जन बनने का मन है। इस वक्त आकाश इंस्टीट्यूट के चीफ कोऑर्डिनेटर मिसेस बीना अग्रवाल जी हमारे बीच मौजूद है। बीना जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बीना जी, ये पूछना चाहेंगे कि आकाश इंस्टीट्यूट में वो कौन सी खासियत है इस वजह से बच्चे टॉप कर रहे हैं? एक तो हमारा 35 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, प्लस हम बच्चों के साथ बहुत ऑनेस्टी से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि बच्चे जब हमारे पास अपने सपने लेकर आए हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है उनके साथ कदम मिला के चलना और उनके सपनों से पहचान करवा देना। इस लक्ष्य के साथ जब हम काम करते हैं तो हमारे टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं। बच्चों को हम मोटिवेट करना नहीं भूलते, क्योंकि बीच बीच में ऐसा समय आता है, क्योंकि इनके सपने बहुत ऊंचे होते हैं तो डर भी उतना ही ज्यादा होता है। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि इनमें डर पैदा ना हो, बल्कि जो है उसको निकाल दें और इनमें कॉन्फिडेंस भर दें, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है तो ये अपना बेस्ट दे पाते हैं और बेस्ट देंगे तो रिजल्ट अच्छा होगा ही। तो अपने आप ही डाउट क्लियरिंग सिस्टम, हम बच्चों को एक एक करके अलग अलग इनके डाउट क्लियर करते हैं। इनको अगर कोई चैप्टर क्लास में नहीं समझ में आता है तो अलग से समझाते हैं, जिस भाषा में इनको समझना है उस भाषा में समझाते हैं, क्योंकि बंगाली बच्चे हो सकता है क्लास में नहीं समझे इंग्लिश में या हिंदी में, तो उनको बाहर में हमारे बंगाली टीचर्स जो बंगाली बोलना चाहते हैं उनको साथ में बिठा के उनको उसकी लैंग्वेज में क्लियर करवाते हैं। इंश्योर करते हैं कि इनको सब्जेक्ट समझ में आ जाए। और फिर टेस्ट, इतने टेस्ट लेते हैं कि इनमें जो भय है, टेस्ट के प्रति भय, वो निकल जाता है। तो जब वो मेन एग्जाम देने जाते हैं तो उनमें भय नहीं होता तो वो अपना बेस्ट दे पाते हैं। प्लस लास्ट के 1-1.5 महीने में हम उनका टाइम मैनेजमेंट भी करवाते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम 2 से 5:20 है, 2 से 5:20 का टाइम बहुत ही लेजी टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है, नींद आती है, और बंगाल में तो स्पेशली वो सोने का टाइम है। तो हम बच्चों को उस टाइम ही क्लास रखते हैं, उस टाइम ही टेस्ट दिलवाते हैं, ताकि उनको भूख और नींद ये दो नहीं सताए, वो लेजी नहीं हो, वो एक्टिव रहे।
क्योंकि ये भी प्रैक्टिस से ही आता है, तो हर छोटी बात का हम ध्यान रखते हैं, इसकी वजह से हम जहाँ हैं वहाँ हैं। आपके यहाँ से कितने बच्चों ने टॉप किया है? हमारे यहाँ से 720 में 2 बच्चे हैं, एक हमारे ये ऑर्गोदीप यहाँ का कोलकाता का बच्चा है, और एक सक्षम अग्रवाल सिलीगुड़ी का बच्चा है, जिन्होंने फुल स्कोर किया 720, जो वेस्ट बंगाल में पहली बार हुआ है। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 24/7 ताजा समाचार के सभी दर्शकों को साधना सरगम का नमस्कार। 24/7 ताजा समाचाরের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24/7 ताजा समाचार के আমার तरफ থেকে ऑल द बेस्ट।